محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بیارس حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد نئی شاہراہوں کی تعمیر کا بالکنڈہ حلقہ اسمبلی امیدوار ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے بھیمکل منڈل میں منعقدہ انتخابی مہم تشہیر میں کیا اظہار۔ دیہی علاقوں میں بیارس حکمرانی میں ہوئی ترقی ممکن، مزید بیارس حکومت کے قیام پر مزید دیہی علاقوں کو دگنی رفتار کے ساتھ دی جائے گی ترقی، رورل ایم ایل اے امیدوار باجے ڈی گوردھن کا خطاب۔ تلنگانہ کے عوام سے بیارس کا گہرا رشتہ ہونے کا بیارس ملتی کے کویتا نے کیا اظہار۔ آرمور کی ترقی صرف کے سی آر سے ممکن، وہ مزید ترقی کے لیے پھر دوبارہ ایم ایل اے کے طور پر جیون ریڈی کو فتح دلانے کی عوام سے کی اپیل۔ آل انڈیا جمیعت القریش ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں سے بیارس اربن ایم ایل اے امیدوار بیگالہ گنیش گپتا نے کی ملاقات و مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ WC فائنل میچ شروع ہونے کے باعث کرکٹ کے شہدائی ٹی وی و فون کی طرف متوجہ۔ آنے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی یقینی طور پر اقتدار حاصل کرنے کا بودھن حلقے کے ایم ایل اے امیدوار پی سدرشن ریڈی نے کیا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ ڈویژن نمبر 14 مجلسی قائدین کا پیدل دورہ، گھر گھر پہنچ کر کی رائے دہندوں سے ملاقات اور بیارس اربن امیدوار بیگالہ گنیش گپتا کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ نظام آباد اربن کے مجلسی قائدین ٹاؤن صدر محمد شکیل احمد فاضل کی صدارت میں آج شہر کے ڈویژن نمبر 14 NRI کالونی کے علاوہ مختلف مقامات پر پیدل دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور گھر گھر پہنچ کر رائے دہی کے دن کار کے نشان کو ووٹ دیتے ہوئے بیارس امیدوار بیگالہ گنیش گپتا کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مجلسی قائدین نے کہا کہ RSS، کانگریس، BJP بیکار ہے اور آنے والی کار ہے۔ مجلسی قائدین کی آمد پر عوام نے ان کا شاندار استقبال عمل میں لایا اور ان کی گل پوشی انجام دی اور 10 سالہ MIM اور بیارس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر بیارس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بیگالہ گنیش گپتا کو کامیاب بنانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر و ڈپٹی میئر ادریس خان، ٹاؤن معتمد شہباز احمد، کارپوریٹر محمد منور علی و دیگر مجلسی کارپوریٹر، قائدین و کارکنان موجود تھے۔ بیارس اربن امیدوار بیگالہ گنیش گپتا نے ضلع صدر تلنگانہ جمیعت القریش ایکشن کمیٹی رفیق قریشی سے ان کے گھر پہنچ کر کی ملاقات و مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ نظام آباد اربن کے بیارس پارٹی امیدوار بیگالہ گنیش گپتا نے سینئر قائد بیارس و تلنگانہ جمیعت القریش ایکشن کمیٹی ضلع صدر رفیق قریشی کے گھر واقع مالا پلی پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ ان کی آمد پر رفیق قریشی نے ان کا شاندار استقبال عمل میں لایا اور ان کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت عمل میں لائی اور ان کی کارکردگی کی ستائش کی۔ اس موقع پر تلنگانہ جمیعت القریش ایکشن کمیٹی کے تمامی ذمہ دار موجود تھے، جن کے ساتھ بیگالہ گنیش گپتا نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمور حلقے کے الور منڈل کے علاوہ مچرلا دیہات میں آرمور حلقے کے ایم ایل اے امیدوار جیون ریڈی نے انتخابی مہم کی تشہیر عمل میں لائی۔ آرمور حلقے کے ایم ایل اے امیدوار جیون ریڈی نے حلقے کے الور منڈل کے علاوہ مچرلا دیہات میں انتخابی مہم کی تشہیر کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر موضع کے مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے اراکین و قائدین نے آرمور ایم ایل اے امیدوار جیون ریڈی سے ملاقات کی اور اس موقع پر انہوں نے کار کے نشان کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے فتح دلانے کی خواہش کی۔ بعد ازاں انتخابی مہم کی تشہیر کے تحت آگے بڑھتے ہوئے
معاوضے کے دیگر سینئر قائدین کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا۔ اس موقع پر جیون ریڈی نے کہا کہ آرمن حلقے میں نئے منڈلوں کا قیام عمل میں لا کر عوام کو ہونے والی مشکلات کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی سرپنچوں کے علاوہ MPTC، TRS قائدین، خواتین، کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ جکل میں BRS پارٹی اقلیتی قائدین کے ہنمنت شنڈے کے حق میں انتخابی مہم۔ جکل اسمبلی حلقے کے جکل نظام ساگر منڈل میں اقلیتی قائدین کلیم پٹیل اسد علی کی نگرانی میں اقلیتی طبقے کے قائدین نے BRS پارٹی امیدوار ہنمنت شنڈے کے حق میں مسلم طبقے میں انتخابی مہم چلائی۔ اس انتخابی مہم کے دوران کلیم پٹیل جکل سابقہ سرپنچ BRS پارٹی سینئر قائد بولی گنگادھر نے کہا کہ BRS پارٹی 10 سالہ دور اقتدار میں تمام طبقات کی ترقی ممکن ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص مائنارٹی طبقے کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے تلنگانہ حکومت اقلیتی اقامتی اسکول کا قیام عمل میں لایا۔ بعد ازاں پٹلم منڈل میں نائب سرپنچ ابراہیم اور سابقہ کوآپریشن ممبر کریم کی قیادت میں کانگریس پارٹی سے BRS پارٹی میں قائدین کی شمولیت ہوئی۔ اس موقع پر جکل سابقہ کوآپریشن ممبر کلاس انور اللہ، قدوس پٹیل، نعیم پٹیل، شیخ حسین، غلام شاکب خان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے عوام سے BRS پارٹی کا گہرا رشتہ ہونے کا BRS MLC کے کویتا نے کیا اظہار۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا نے انتخابی مہم کی تشہیر کے تحت دھرما پوری BRS پارٹی امیدوار ریاستی وزیر کے ایشور پیدا پلی، MP وینکٹیش جگتیال، ضلع پریشد چیئرپرسن ڈی وسنت کے ہمراہ خواتین کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا اصل مقصد عوام کو فائدہ پہنچانے کا نہیں ہے، بلکہ ان کی اہم ترین خواہش اقتدار حاصل کرنا ہے، لہٰذا عوام کو ان کی بناوٹی باتوں میں نہ آنے کی تاکید کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی کو 55 سال کا موقع دیا گیا تو اس دوران کانگریس حکومت کی جانب سے 200 روپے وظیفہ دیا گیا اور کسانوں کو 1 روپے کی رقمی امداد بھی حوالے نہیں کی گئی۔ کے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام سے BRS پارٹی کا گہرا رشتہ ہے، لیکن کانگریس پارٹی اپنی بناوٹی باتوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، لہٰذا عوام BRS حکومت کے دور اقتدار میں ہونے والے ترقیاتی کاموں و فلاحی اسکیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے BRS پارٹی کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے فتح دلانے کی اپیل کی۔ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా 1 రూపాయి మీకు పెన్షన్ లేక నెల వస్తలేదు। అటువంటి వాళ్ళ కోసం కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేసి ఇంకొక పథకం పెట్టారు। ఏంటంటే ఏదైతే ఇంట్లో ఎవరికి ఏ పథకం వస్తలేదో, ఎవరికి ఏ రకంగా ఉన్న పెన్షన్ వస్తలేదో ఆ ఇళ్ళని చూసుకొని వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇంటి ఆడబిడ్డ పేరు మీద సౌభాగ్య లక్ష్మి అనే పథకం పెట్టి 3000 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నామని మీకు సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। వెంటనే సపోర్ట్ కొట్టలేరు, సౌభాగ్య లక్ష్మి అవసరం లేదా? వద్దా 3000 పెన్షన్ మనకు కావాలి కదా? అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది, ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది మనం రేషన్ కార్డులకు అప్లై చేస్తున్నాం కదా, కొన్ని వచ్చినాయి, కొన్ని రాలే, ఇంకా కొన్ని అట్లనే ఆగిపోయినాయి। రేషన్ కార్డు మొదలు మంచిగా చేసుకుంటాం ఇప్పుడు అన్న గెలవగానే। वेलपुर, मोरताड़, भीमगल, मेंडोरा मंडलों से ताल्लुक रखने वाले दीगर नौजवानों ने कांग्रेस BJP पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। वेलपुर में वाक़ रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की रिहाइश गाह में वेलपुर, मोरताड़, भीमगल, मेंडोरा मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के नौजवानों ने BJP व कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को BRS पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत व रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने से कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाई जा रही। CC रोड ड्रेनेज की तामीर अमल में लाएगी और इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने के बायस मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम
अवाम BRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इसीलिए अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में BRS हुकूमत की जानिब से बालकुंडा हल्के के MLA उम्मीदवार के तौर पर नामजद किए गए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए सख्त मेहनत करते हुए कामयाब बनाने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात व तरक्याती कामों की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और रियासत तेलंगाना की हुकूमत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती कामों फलाह स्कीमात से दीगर रियासतों के अवाम मुतासर होकर इनके अपने रियासतों में तेलंगाना की फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि रियासती वज़ीर आला KCR की मकबूलियत न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी इनकी मकबूलियत बरकरार है, जिससे आने वाले इंतखाबात में रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम अपना कीमती वोट BRS हुकूमत के हक़ में देकर BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से यकीनी तौर पर फतेह दिलाने का इजहार किया। BRS MLC के कविता की कार के इंतखाबी अहदेदारों से ली तलाशी। इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत धर्मपुरी का सफ़र करने वाली BRS MLC के कविता की कार को इंतखाबी अहदेदारों ने चलगल चेक पोस्ट के पास रोककर तलाशी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर BRS MLC के कविता की जानिब से इंतखाबी अहदेदारों को मुकम्मल तौर पर ताउन करने की वजह से इंतखाबी अहदेदारों ने कार की बारीक बीनी से तलाशी अमल में लाते हुए रवाना किया। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में BRS के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को वोट देकर फतेह दिलाने के लिए मौजे के BRS कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में BRS के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में मौजे के BRS कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब अवाम को सहूलियात पहुँचाने की खातिर कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया और रियासती तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के फ़वाइद को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाने में तेलंगाना हुकूमत 100% कामयाब होने के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए इन्होंने हाल ही में CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मैनिफेस्टो में दिए गए फलाह स्कीमात को फिर दोबारा तेलंगाना हुकूमत बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना के अवाम को इन स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाने का तयक़ुन दिया। लिहाजा आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS हुकूमत के हक़ में वोट देकर मुकामी अवाम से अपील की कि बालकुंडा हल्के असम्बली के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सरपंच तुलसी नागाभूषणम, MPTC मेंबर रामाराजा गौड़, मौजे के TRS सदर शरद, सीनियर कायदीन दासरी वेंकटेश, शेख रहीमुद्दीन, के अशोक, प्रसाद राव, वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ बाईपास जंक्शन के पास गुज़िश्ता शब इंतखाबी अहदेदारों ने गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ बाईपास जंक्शन के पास गुज़िश्ता शब इंतखाबी अहदेदारों ने गाड़ियों की तनख़ी का इनेकाद अमल में लाया, जो कि फ्लाइंग स्क्वाड अहदेदार किशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम पुलिस मुलाज़मीन व दीगर अमले की जानिब से गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। इस मौके पर फ्लाइंग स्क्वाड अहदेदार किशन ने कहा कि कौमी शाहरा पर 24 घंटे तक गाड़ियों की तनख़ी का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। रूरल हल्के को मज़ीद तरक्की की जानिब गामज़न करने का इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत निज़ामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार पाजिडी गोवर्धन ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल व इंदलवई मंडल में रूरल MLA उम्मीदवार पाजिडी गोवर्धन ने तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के फ़वाइद को मजहब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात के अवाम तक पहुँचाया गया और तेलंगाना हुकूमत फिर दोबारा इख्तिदार हासिल करने की सूरत में
केसीआर की जानिब से ऐलान की गई फलाह स्कीमात को यकीनी तौर पर रूबी अमल में लाते हुए अवाम की तरक्की की जानिब गामजन करने के अलावा रूरल हलके में मज़ीद तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का तयख्न दिया। इन्होंने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आपके चहीते कायद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। అన్ని గ్రామాలు డెవలప్ అయినాయి, ప్రతి గ్రామం డెవలప్ చేస్తున్నాను. కానీ కరెంట్ విషయానికి వస్తే ఈ గ్రామంలో చాలా మంది రైతులు ఉన్నారు. రైతులకు మనవి చేస్తున్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మన ప్రాంతంలో ఓన్లీ బోర్ మఠం మీద బతికే రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు. మన ఆ కాలంలో గమనించండి, ఆ కాలంలో 3 గంటలు 2 గంటలు 5 గంటలు 4 గంటలు అవుతున్నాయి. రాత్రి ప్రశ్న తెలియదు, పగలు ప్రశ్న తెలియదు. మరి ఆ పగలు రాత్రి వచ్చే కరెంటు కోసం రైతులు ఉన్నప్పుడు పాటించాలనుకుంటే అర్ధరాత్రి పూట కూడా కట్టెలు పట్టుకొని WC फाइनल मैच शुरू होने के 22 क्रिकेट के शहदाई टीवी व फोन की तरफ मुतवज्जे। WC फाइनल मैच शुरू होने के 22 क्रिकेट के शहदाई टीवी व फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो गए। वो नागुज़ेर वजूहात की वजह से बाहर रहने वाले अफराद भी मैच देखना नहीं छोड़े। आज बड़ी तादाद में शादियां होने की वजह से मुख्तलिफ मंडलों के स्क्रीन पर मैच की नुमाइश जारी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज आदिलाबाद के एक शादी में आने वाले अफराद इधर शादी व मैच का मुशाहिदा करने में मसरूफ़ है, तो एक तरफ श्रीलिंगमपल्ली में बीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी जलसा में दीगर नौजवानों ने अपने फ़ोन पर मैच का मुशाहिदा किया। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करने का बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने मंडल के पोचराम, जनलम, नेहरू नगर, धर्माराम देहात में इंतखाबी मुहिम की तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने की सूरत में कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात को फिलफुल रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात के अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन पी श्रीनिवास, बी राम मोहन, नारायण चौधरी, एन साइलू, रवि कुमार व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు నామినేషన్ వేసిన తర్వాత మీ బాధ సాధకాలు తెలుసుకుందామనే భావన లేనటువంటి వ్యక్తి 10 సంవత్సరాల నుంచి మీ గ్రామానికి రానటువంటి వ్యక్తికి మనం ఓటేద్దామా? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తనకు ఓటేసేది లేదు. ఇప్పుడేదో రాత్రిపూట వచ్చి మాట్లాడుకుంటా ముసలి కన్నీరు గారుస్తున్నాడు. మళ్ళీ రేపు పొద్దున 30వ తారీఖు తర్వాత మళ్ళీ కనపడే 5 సంవత్సరాలు. దయచేసి ఇదంతా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి అమ్మా। भीमगल मंडल में नए रोड की तामीर अमल में लाने का इंतखाबी मुहिम की तशहीर के तहत बालकुंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। भीमगल मंडल के मुकाम पर बालकुंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात व तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए इन्होंने हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाह स्कीमात को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाकर बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का तयख्न दिया। इन्होंने कहा कि अवाम तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस हुकूमत को वोट देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को कामयाब बनाने की सूरत में हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के अलावा मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का तयख्न दिया। తెలిసిన మీరు నాకు మొత్తం నియోజకవర్గంలోనే అత్యధిక పర్సెంటేజ్ ఓట్లు వేసిన గ్రామం ఇది కాబట్టి ఈ గ్రామస్తులు ఏది అడిగినా భవిష్యత్తులో కూడా నేను కాదనే పరిస్థితి ఉండదు। ఒకటే ఏంటంటే నేను చేయగలిగే పరిస్థితిలో ఉండాలి అంతే। నేను చేయగలిగేది ప్రతి ఒక్కటి చేస్తా, దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు। ఇక కొన్నేమో వేరే వేరే ఇప్పుడు మన ఊర్లో ఏమైందంటే 4-5 మాట్లాడారు। ఒక ఆయన ఒక 2 అడిగిండంటే మరి ఆయన 2 అడిగిండు కదా, మరి నేను అడగాలి కానీ ఇంకో 2 नंदीपेट मंडल के निकलपुर देहात में आर्मन एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई।
नंदीपेट मंडल के निकलपुर देहात में आलमूर हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के शरीक हयात रजिता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर जीवन रेड्डी के हलके में होने वाली तरक्की से मुताल्लिक़ा पंपलेट व केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह व बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आलमूर हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच के अलावा एमपीटीसी खवातीन टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता 3 दिन कबल कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार एनुगु रविंदर रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने वाले रायाकुर कैंप के नौजवानों ने फिर दोबारा बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रुद्रपुर मंडल के रायाकुर कैंप के बीआरएस कारकुनान गुज़िश्ता 3 यौम कबल एनुगु रविंदर रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में होने वाले इख्तिलाफात के अलावा कायदीन का तर्ज अमल से पसंद न आने की वजह से फिर दोबारा बांसवाड़ा हल्के के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पोचाराम भास्कर रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी का खंडवा पहनते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस प्रोग्राम में रुद्रपुर मंडल के कॉर्पोरेशन मेंबर शेख मस्तान, आरिफ अख्तर, हैदर व दीगर ने शिरकत की। మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆలోచించిన మన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి బాన్సవాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో పనులు ప్లస్ మన ఊరికి సంబంధించిన ఏదైతే అంగన్వాడీ मागलूर मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। मागलूर मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में एमपीपी प्रभाकर, सदर सत्यम भूषण जी, रंजीत, श्रीकांत, नवीन, बशीर, सतीश व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद नई शाहराओं की तामीर का बालकुंडा हल्का असम्बली उम्मीदवार रियासती उद्र वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल मंडल में मुनाकिदा इंतखाबी मुहिम तशहीर में किया इज़हार। दही इलाकों में बीआरएस हुक्मरानी में हुई तरक्की मुमकिन, मस्जिद बीआरएस हुकूमत के क़याम पर मस्जिद दही इलाकों को दुगनी रफ्तार के साथ दी जाएगी तरक्की। रूरल एमएलए उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन का खिताब। तेलंगाना के अवाम से बीआरएस का गहरा रिश्ता होने का बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इज़हार। आलमूर की तरक्की सिर्फ केसीआर से मुमकिन हो, मज़ीद तरक्की के लिए फिर दोबारा एमएलए के तौर पर जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों से बीआरएस अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने की मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। WC फाइनल मैच शुरू होने के बाद क्रिकेट के शायदाई टीवी व फोन की तरफ मुतवज्जे। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करने का बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।